قوم کے آزادی جمہور کے متوالوں نے ہر سردار بغاوت کے ہیں نغمے گائے. ان شوروں کے سرداروں سے، اسلام کے پہرے داروں سے میں نامی ہوں، میں نامی ہوں. پرچم جاں کو صلیبوں پہ سجایا ایسے، قتل گاہوں پہ صداقت کے علم لہرائے. یہ علم جھوم کے اٹھے تو یہ جانا سب نے، کون اس کوچے جانا میں تھا اپنا لوگو، کن کے ہاتھوں سے ٹپکتا رہا خون ناحق، کس نے اس راہ میں سر اپنا کٹایا لوگو. Democracy is the best revenge. کون پہنچا صفِ قاتل میں یہاں اور کس نے اپنے ہی خون سے وفاؤں کے ترانے لکھے. ان کے جب ہاتھ قلم ہو گئے پھر بھی یارو اپنی زنجیر کی جھنکار سے افسانے لکھے. پاکستان میں جمہوریت کا سفر، قربانیوں کی لازوال داستان، قدم بقدم منزل بمنزل. کن کے ہاتھوں سے ٹپکتا رہا خون ناحق. 5 جولائی 1970 کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے واشگاف الفاظ میں قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں. انہوں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر قوم سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کروا کر اقتدار عوام کے نمائندوں کو منتقل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی سیاستدان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے چاہے ان کے پاس 100% ثبوت بھی ہوں، کیونکہ یہ کام عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے. پوری قوم نے جنرل ضیاء کے ان وعدوں پر اعتماد کیا، لیکن جنرل ضیاء ایک ایک کر کے اپنے تمام وعدے توڑتے رہے. مارشل لاء کے نفاذ کے بعد جناب بھٹو اور پی این اے کے لیڈروں کو مری میں حفاظتی تحویل میں رکھا گیا، جہاں سے وہ 1 اگست 1977 کو رہا کر دیے گئے تاکہ وہ 18 اکتوبر کے مجوزہ انتخابات کی تیاری میں حصہ لے سکیں. جناب بھٹو نے مری سے آتے ہی اندرون سندھ ٹرین کے ذریعے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. اس مرتبہ عوام نے ان کا استقبال پہلے سے کہیں زیادہ کیا، کیونکہ اب وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت اختیار کر چکے تھے. اندرون سندھ ہر ریلوے اسٹیشن پر عوام کا ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوتا تھا. یہ وہ موقع تھا جب جنرل ضیاء کی سوچ بدلنے لگی. پہلے ان کا خیال تھا کہ جناب بھٹو سیاسی طور پر ختم ہو چکے ہیں، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سیاستدانوں کی ٹرین پر سفر کرنے پر پابندی لگا دی. لیکن جب بھٹو صاحب 8 اگست 1977 کو بذریعہ طیارہ لاہور پہنچے تو تقریباً سارا لاہور ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا. جناب بھٹو کے حق میں عوامی طاقت کے اس مظاہرے نے جنرل ضیاء کی غیر جانبداری کو ختم کر دیا اور وہ جناب بھٹو کے مخالف کی حیثیت سے سامنے آ گئے.
भुट्टो साहब के सबसे बड़े सियासी हरीफ और कौमी इत्तेहाद के अहम रहनुमा जनाब असगर खान लिखते हैं, 15 जुलाई 1977 को जब मौलाना मुफ्ती महमूद ने दरियाफ्त किया था कि उनका भुट्टो पर मुकदमा चलाने का इरादा है, तो ज़ियाउल हक ने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। 8 अगस्त को लाहौर में भुट्टो की ताकत के मुजाहरे ने ज़ियाउल हक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुमकिन है पीपल्स पार्टी अक्टूबर 1977 के इंतखाबात जीत ले। वो अनानी हुकूमत भुट्टो को वापस देने पर किसी सूरत तैयार न थी। 3 सितंबर 1977 को भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया और 17 सितंबर को उन्हें ज़ियाउल हक के हुक्म पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब मोहम्मद अहमद खान के मुकदमे के अलावा उनके खिलाफ 55 दूसरे मुकदमात कायम किए गए, जिनके लिए मवाद मार्शल हुकाम ने इकट्ठा किया हुआ था। जाहिर है कि भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई का फैसला 15 जुलाई और अगस्त के इख्तिताम तक के 6 हफ्तों में किया गया। इस फैसले के मुहर्रकात कुछ यूं थे। अगस्त में लाहौर आमद पर भुट्टो का जबरदस्त इस्तकबाल, फौजी जनता की वो अनासर जो भुट्टो के दोबारा इंतखाबात में कामयाब होने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार न थे, उनके ज़ियाउल हक को मशवरे, कौमी इत्तेहाद के बाद रहनुमाओं की तरफ से भुट्टो पर मुकदमा चलाने और इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तें, 1973 के आयन की वो दिफात जिनके तहत आयन को मंसूख करने वाले को मौत की सजा दी जा सकती है, उसकी ज़ियाउल हक को याद दहानी, ज़ियाउल हक के दिल में सियासतदानों के मुताल्लिक बद-एतमादी। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हक का ये फैसला सियासी मसलहतों का मरहून मिन्नत था और ये एक गैर जानबदार सरबराह मुमलकत का अमल नहीं था। इस अमर को कौन झुठला सकता है कि मुकदमे के दौरान ही ज़ियाउल हक ने कहा था कि वो भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। ज़ियाउल हक जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कई बार हल्फिया बयान दिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता इंतखाब से पहले एहतिसाब की बातें करने लगे, क्योंकि 16 सितंबर 1977 से जारी इंतखाबी मुहिम में जनाब भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद अवाम की हमदर्दियां वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। जनरल ज़िया की इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से अवाम को जनाब भुट्टो और उनकी पार्टी के साथ ज्यादा हमदर्दी पैदा हो गई थी। जनाब भुट्टो की गिरफ्तारी की वजह से इंतखाबी मुहिम की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बेगम नुसरत भुट्टो के कांधों पर आन पड़ी थी। इस इंतखाबी मुहिम में जनाब भुट्टो की 24 साला साहिबजादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी पहली बार अवामी इज्तिमात से खिताब किया और अवाम ने उन्हें बहुत पजीराई बख्शी। चुनाचे जनरल ज़िया ने 1 अक्टूबर 1977 को आम इंतखाबात अमन व अमान की खराब सूरत हाल का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिए। यूं जनरल ज़िया के 90 दिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तवील हो गए। उन्होंने कहा कि अब इंतखाबात मुस्बत नताइज का यकीन होने के बाद ही कराए जाएंगे और जनरल ज़िया के मुस्बत नताइज का मतलब पीपल्स पार्टी की शिकस्त था। कौमी इत्तेहाद के अहम रहनुमा जनाब असगर खान इस इल्तिवा के बारे में लिखते हैं, मालूम हुआ कि कौमी इत्तेहाद के बाद लीडरों ने जनरल ज़िया से दरखास्त की थी कि वो किसी हाल में इक़्तिदार न छोड़ें। वो हल्का इंतखाब जहां से भुट्टो ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे, वहां कौमी इत्तेहाद के लीडरों की कामयाबी के इम्कानात नहीं थे। चौधरी ज़हूर इलाही लाहौर के हल्के से पजीराई हासिल न कर सके और पीर पगाड़ा तो लाड़काना के हल्के में एक मर्तबा भी नहीं गए। ये अफसोसनाक हकीकत वक्त गुजरने के साथ साथ वाज़ेह होती चली गई कि कौमी इत्तेहाद के लीडरों की एक वाज़ेह अक्सरियत जमहूरियत के लिए सिर्फ जुबानी दावे कर रही थी और अंदरूने खाना वो ज़ियाउल हक के ज़ेरे साया हर तरह की खिदमत के लिए तैयार थे। उन्हें अपने आप पर इत्मीनान नहीं था और अवाम का सामना करने से घबराते थे। जनाब असगर खान ने बाद में ज़िया से अपनी एक मुलाकात के बारे में यूं बयान किया, 3 मई को एबटाबाद में ज़ियाउल हक से मुलाकात के दौरान मैंने पूछा कि वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए संजीदा है।
उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखकर जज्बाती अंदाज में कहा, बहैसियत एक सिपाही और मुसलमान के ये मेरा पक्का वादा है। अगर मैंने कभी अपने वादे से इनहराफ किया तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि आप मुझे सरेआम एक झूठा शख्स करार दें। मुझे अफसोस है कि जब 1.5 साल बाद मैंने उनके वादे का इम्तिहान लिया और उन्हें झूठा शख्स करार दिया तो मुझे इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल जियाउल हक महज इसलिए इलेक्शन कराने से गुरेज़ां थे कि उन्हें जनाब भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कामयाबी का यकीन था। अब उन्होंने जनाब भुट्टो को जिस्मानी तौर पर खत्म करने का फैसला किया। इकोनॉमिस्ट ने 12 जनवरी 1986 को अपनी इशाअत में भुट्टो केस के बारे में लिखा था। जनरल जिया ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ये बहुत जल्द भांप लिया था कि वो मुल्क का आइन तोड़ने के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है जिसकी सजा मौत है। उसे ये भी इल्म था कि उसका मद्दे मुकाबल एक ऐसा शख्स है जो अवाम में मकबूल है। अगर भुट्टो बच गया तो फिर वो ना बच सकेगा। ये उसकी बका का मसला था। भुट्टो को एक पुराने मुकदमे में उलझा दिया गया। अदालतों में उसके साथ घटिया सलूक रवा रखा गया। जेलों में उसके साथ इंतहाई इम्तियाजी सलूक किया गया। उसे ईजा पहुंचाने में कोई कसर ना उठा रखी गई। भुट्टो के खिलाफ जो केस बनाया गया, दुनिया के बाद आलमी शोहरत याफ्ता ज्यूरिस्ट की नजर में उस केस में सिरे से कोई जान ही न थी। लेकिन जनरल जियाउल हक फैसला कर चुका था। एक काया आदमी की तरह वो भुट्टो की मौत चाहता था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहता था। भुट्टो के साथ जिन जजों ने जरा भी हमदर्दी की, उन्हें उनका खमियाजा भुगतना पड़ा। कई जज मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जलावतनी की जिंदगी बसर करने लगे। इधर जनरल जियाउल हक अपनी मर्जी से आइन में तरामीम करता चला गया। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न बनाए जाने पर जनाब भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे। उन्हें जनरल जिया ने न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया। उनकी भुट्टो दुश्मनी का ये आलम था कि उन्होंने जनाब भुट्टो की तस्दीक के लिए कमरे अदालत में एक कठहरा बनवा दिया। उन्हें बड़ा मुल्जिम कहकर पुकारा। उन्हें बदनाम करने के लिए मुतादिद बार ऐसे रिमार्क्स दिए जिसकी मिसाल आजाद अदलिया की तारीख में नहीं मिलती। अपने फैसले में उन्होंने जनाब भुट्टो के बारे में आदि, दरोगो और नाम का मुसलमान जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नामुनासिब करार देकर फैसले से हज़फ कर दिए। ये बात भी हैरत अंगेज है कि जनाब भुट्टो के खिलाफ अदालती कत्ल का फैसला देने वाले मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। भगदड़ में लोग उनकी मैयत छोड़कर भाग गए। इस भगदड़ में कई लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च 1978 को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। लाहौर हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने जनाब भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई, उनके नाम ये हैं: कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जस्टिस ज़कीउद्दीन पॉल, जस्टिस M.H. कुरैशी, जस्टिस आफ्ताब हुसैन और जस्टिस गुलबाज खान। इस मुकदमे की हैरान कुन बात यह भी है कि जब इस्तिगासा के वकला की जरह जारी थी तो उसकी समाअत खुलेआम होती रही। इस दौरान जनाब भुट्टो को बदनाम करने के लिए तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते रहे, लेकिन जब सफाई के वकला की बारी आई तो समाअत बंद कमरे में की गई ताकि अवाम जनाब भुट्टो का मौक़िफ़ न सुन सकें। इस पर जनाब भुट्टो ने ये तारीखी फिक्रा बोलते हुए अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया कि ये कत्ल का मुकदमा नहीं बल्कि मुकदमे का कत्ल है। लेकिन मौलवी मुश्ताक हुसैन पर इसका कोई असर न हुआ। हालांकि जनाब भुट्टो उन पर कई बार अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनकी तब्दीली का मुतालबा भी कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवारुल हक का मामला भी जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जैसा था। जस्टिस अनवारुल हक जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन के करीबी दोस्त थे। वो भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर तरक्की न मिलने की वजह से जनाब भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवारुल हक को भी जनरल जियाउल हक ने खुद इस ओहदे पर नामजद किया। साबिक चीफ जस्टिस याकूब अली खान को जनरल जिया ने इस वजह से भी तब्दील कर दिया था कि उन्होंने मार्शल लॉ के निफाज को चैलेंज करने वाली बेगम नुसरत भुट्टो की आईनी दरखास्त को
समाअत के लिए मंजूर कर लिया था, जबकि जस्टिस अनवारुल हक ने इस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को जायज करार दे दिया था और उन्हें आईन में मनमानी फराहम करने का इख्तियार भी सौंप दिया था। इन वजूहात की बिना पर जनाब भुट्टो ने उन पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अपने मुकदमे के बेंच की सदारत करने और बेंच के दूसरे जजों के तकर्रुर न करने की दरखास्त दी, जिसे चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने 20 मई 1978 को मुस्तरद कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो इब्तिदा में 9 जजों ने इसकी समाअत की। इन जजेस के नाम ये हैं: चीफ जस्टिस शेख अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस कैसर खान, जस्टिस वहीदुद्दीन, जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस सफदर शाह, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस मोहम्मद अकरम। इस दौरान जनाब जस्टिस कैसर खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। चूंकि वो 6 माह से इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे, इसलिए भुट्टो के वकला ने दरखास्त की कि जस्टिस कैसर को समाअत मुकम्मल होने तक मुलाजमत में तोसी दी जाए, जो मुकदमे की नौयत के लिहाज से मामूल की कार्रवाई है, लेकिन इसे दरखुरे इतना न समझा गया। इसी तरह जस्टिस वहीदुद्दीन को अदालत की बिना पर मुकदमे की कार्रवाई से अलहदा कर दिया गया। उनके बारे में यह कयास आराई की जाती रही कि चूंकि दोनों जज साहिबान ने मार्शल लॉ हुकाम के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और वो जनाब भुट्टो के हक में फैसला देना चाहते थे, लिहाजा उन्हें फारिग कर दिया गया। इसका इतराफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अपनी किताब मेमोर्स एंड रिफ्लेक्शंस में यूं किया है। 30 जुलाई 1978 को जस्टिस कैसर खान, जिनका ताल्लुक सूबा सराज से था, रिटायर्ड हो गए। वो मिस्टर भुट्टो की अपील मंजूर करने के हामी थे। बाद में जस्टिस वहीदुद्दीन की बीमारी और बेंच से अलहदगी से मिस्टर भुट्टो को जबरदस्त धचका लगा, क्योंकि वो मिस्टर भुट्टो के नुक्ताए नजर के सबसे बड़ी हामी थे। अगर ऐसा ना होता तो अदालत का फैसला 5-4 की अददी बर्तरी की बिना पर मिस्टर भुट्टो के हक में होता। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3-4 के इख्तलाफी फैसले के साथ लाहौर हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। 4 जजों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जायज करार देते हुए जनाब भुट्टो की सजाए मौत को बरकरार रखा। उन जजों के नाम ये हैं: चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस अकरम। जबकि 3 जजों ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए जनाब भुट्टो को बरी करने का हुक्म दिया, क्योंकि उनके ख्याल में इस्तिगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था और जनाब भुट्टो इस केस में बेगुनाह थे। ये जज थे जस्टिस सफदर शाह, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस दुर्राब पटेल। इस केस ने दुनिया की अदालती तारीख में हलचल मचा दी। चुनांचे अमेरिका के साबिक अटॉर्नी जनरल रमजे क्लार्क और श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट के जज T.W. राजारत्नम समेत कई आलमी सतह के ज्यूरिस्ट ने इस मुकदमे की कार्रवाई पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे इंसाफ के मुनाफी करार दिया। जस्टिस राजारत्नम ने तो भुट्टो केस के बारे में एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम अ जुडिशरी क्राइसिस है। इसके अलावा हमारे मुल्क के आईनी माहिरीन के नजदीक जनाब भुट्टो का ट्रायल इंसाफ के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। गवर्नमेंट ने जानबूझ के केस कंफ्यूज करने के लिए गुलाम हुसैन का एडमिशन रखा, ने गुलाम हुसैन को कोरोबोरेट करने के लिए कुछ 10-15 गवाह था। तो हमको तो समझ नहीं आता कि हाई कोर्ट ने भी जबरदस्त अटेंशन दिया गुलाम हुसैन का एविडेंस को, ने अनवारुल हक ने साहब ने भी दिया। हमारा ख्याल में गुलाम हुसैन का एविडेंस भुट्टो साहब के खिलाफ नहीं था। सफदर शाह ने हलीम ने जस्टिस वहीदुद्दीन साहब, हम सारा वक्त उसके साथ मशवरा करता था, वो मेरा जजमेंट साइन करने वाला था। 4 जज ने फैसला दिया कि गिल्टी था, ने हम लोग 3 ने एक्विट किया। तो पीछे रिव्यू फाइल हो रहा था कि भी 3 जज ने एक्विट किया है, ये नया पॉइंट है, सेंटेंस लाइफ करो। वो आर्ग्यूमेंट किया था बख्तियार साहब ने। हमको तो बहुत अफसोस है कि वो भी आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया था। भुट्टो साहब का जो मुकदमा चला वो हमारी अदालती तारीख का
ایک افسوسناک پہلو ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے۔ بھٹو صاحب کے مقدمے میں انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ جس جج صاحبان نے ان کا مقدمہ سنا ہائی کورٹ میں، جنہوں نے ان کے مقدمے کی سماعت کی، چیف جسٹس صاحب مولوی مشتاق حسین مرحوم اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے درمیان ایک تنازع تھا، بڑا واضح ذاتی اناد موجود تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے اور اپنی کتاب میں بات لکھی ہے، یہ بھی بحث ہوتی ہوئی جج صاحبان کے درمیان کہ ان کی سزائے موت کو کم کر کے اگر سزائے عمر قید سب مل کر دیں، یونانیمس فیصلہ دیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جب پڑھا ہم نے تو ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے میں یہ کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ پہلے دن سے یہ ہمارا رویہ تھا کہ بھئی یہ ٹرائل جو ہے وہ تو درست نہیں ہے۔ کوئی ایسا ٹرائل جس میں عدالت جو ہے وہ ملوث ہو جائے، ٹرائل کرنے والے ٹرائل کرتا ہے، یعنی عدالت میں مقدمہ چلانے کا کام جو ہے وہ ریاست کا ہے، اور عدالت جو ہے وہ تو فیصلہ کرنے والی ہے اور وہ ریاست سے الگ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر عدالت اور ریاست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی مقدمہ چلا رہی ہوں تو پھر وہ مقدمہ جو ہے اول روز سے مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مقدمہ اول روز سے ہی مشکوک ہو گیا۔ آج کوئی عدالت جو ہے اس میں بھٹو صاحب کے مرڈر ٹرائل کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ یا اس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہماری کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کے حوالے کے طور پر استعمال نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کو اس کے اوپر ایمان نہیں۔ اور انوار الحق کو بھی ایک کینہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ بینچ 9 ججوں کا تھا آغاز میں۔ جسٹس کیسر خان ریٹائر ہو گئے سماعت کے دوران، لیکن ان کو ایڈ ہاک جج نہیں لیا گیا، گو لے لینا چاہیے تھا۔ جسٹس وحید الدین بیمار ہوئے تو ان کو بینچ سے ہٹا دیا گیا، پیچھے 7 جج رہ گئے۔ 4 جج صاحبان نے سزائے موت کی تجویز کی اور حکم دیا۔ 3 جج صاحبان نے یہ نہیں کہا کہ ملزم ذوالفقار علی بھٹو قصوروار تو ہے لیکن سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے، یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے۔ ان 3 ججوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو بالکل بے گناہ ہے، جرم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود سزائے موت نہ صرف تجویز ہوئی پر اس پر 4 اپریل 1979 کو عمل درآمد بھی ہو گیا۔ ڈیتھ پینلٹی دینے کے لیے سب ججوں کو متفق ہونا پڑتا ہے اور وہ متفق نہیں تھے۔ اب اس میں یہ بحث تو ختم ہو گئی کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا کہ نہیں، جبکہ ایک جج صاحب خود کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ ہم نے یہ ججمنٹ دی اور دی اس نظریے سے کہ یہاں پہ سول وار نہ ہو جائے، مگر اس کیس میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ کیس جو تھا یہ بالکل ایک فلاڈ کیس تھا۔ اس ضمن میں مذہبی سیاسی جماعتوں اور دائیں بازوں کے صحافیوں اور میڈیا نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ غالباً 20ویں صدی میں کردار کشی کی بدترین مہم تھی جو کئی سال تک یک طرفہ طور پر جاری رہی۔ تقریباً 2 سال تک ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت اٹھانے کے بعد اگرچہ جناب بھٹو جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن ان کے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ انہوں نے ہر طرح کے تشدد کے باوجود رحم کی بھیک مانگنا گوارا نہ کی اور بہادروں کی طرح موت کو گلے لگا لیا۔ سے 22 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے مقدمہ بغاوت ہند میں عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ وقت کی عدالت سے اوپر بھی ایک عدالت ہے اور وہ ہے تاریخ کی عدالت، جس کا فیصلہ حقیقی
और हतमी होता है। वक्त की अदालत के फैसले में गवाह बोलते हैं, तारीख की अदालत के फैसले में सिर्फ कटहरा बोलता है, जिसकी गवाही हकीकी और हतमी होती है। हर एक अदालत में यारो एक चीज कटहरा होती है। ये चीज भी कैसी यकता है, ये हंसती है न रोती है। इस एक कटहरे ने अब तक क्या क्या नहीं मंजर देखे हैं। मंसूर से मुजरिम देखे हैं, सुकरात से मुनकर देखे हैं। ये कटहरा क्या शय है, या कैसा कैसा खेल हुआ। या एक पलड़े में बर्राबा और एक पलड़े में ईसा था। फिर इसी कटहरे ने देखा कि सच को यूं इंसाफ मिला। एक कातिल मुजरम बच निकला और ईसा दार पे झूल गया। इंसाफ की कुर्सी के मुंसिफ जो कहते रहे, जो लिखते रहे, चुपचाप कटहरा सुनता रहा कि उस पर वक्त के पहरे थे। जब वक्त का पहरा उठा था, तारीख ने जब इंसाफ किया, उस रोज कटहरे ने अपने होठों का ताला तोड़ दिया। फिर सिर्फ कटहरा बोला था। हर राज पुराना खोला था। तारीख ने तब ऐलान किया, सब झूठे, ईसा सच्चा था। जब फिर तारीख ने अदल किया, उस रोज कटहरा बोलेगा, इस दौर का ईसा कौन बना, सब राज पुराने खोलेगा, सब राज पुराने खोलेगा। एक रोज कटहरा बोलेगा। हमके आजादी जमहूर के मतवालों ने हर सरेदा